Hello everyone. In previous video, we analyzed the syllabus of food technology for GATE XE and XL, in which we looked at the syllabus of food chemistry and nutrition. In food chemistry and nutrition, we study about the constituents of food, the macronutrients and the micronutrients. The macronutrients includes carbohydrates, proteins and lipids, while in micronutrients includes those which are required in less amount. It includes minerals, nutrients and bioactive compounds. With these both macro and micronutrients, there are some other compounds as well, such as pigments, flavors, enzymes, anti-nutrients, and nutraceuticals. And if these nutrients are not consumed sufficiently, they can cause some nutrient deficiency diseases. Now, in the macronutrients portion, we will look at the carbohydrates. So, before we discuss about food chemistry, first we will look at a scenario. Let's say there are 7 members in a family. One is infant, one is young child, one is adolescent, two adults, and two elders. So each of these have their nutritional requirements of diet which depends on age, body weight, physical activity level, physiological states and other factors. So any meal they consume must satisfy their level of nutrients in the body and prevent symptoms of deficiency. So these nutrients are basically classified into two categories. One is the macronutrients and second is the micronutrients. Macronutrients required in large amount with respect to the micronutrients. So before we move ahead, here is a question. The question is, arrange the following in ascending order of energy per gram produced by the following compounds. So these four options are given: carbohydrate, fat, protein and alcohol. So we know that carbohydrate gives 4 kilocalorie per gram, fat gives 9 kilocalorie per gram and protein gives 4 kilocalories per gram. But how much energy does a 1 gram of alcohol gives? So its answer would be this. Here the carbohydrate and protein gives the same amount of energy and alcohol gives 7 kilocalories per gram and then fat which gives 9 kilocalories per gram. According to National Institute of Nutrition, Hyderabad, an average person to get 2000 calories per day should consume any diet in which 65% of energy comes from carbohydrates, 15% of energy comes from protein, and 20% of energy comes from fat. So 65% of energy from carbohydrate means the person should consume 325 gram of carbohydrate in a single day. As 65% energy should be sourced from carbohydrates, so we take this macronutrient first, that is the carbohydrate. Here is the objective of this lecture. We will look at what exactly the carbohydrates, its classification and structural representation of monosaccharides, then some terminologies such as anomers, isomers, inversion of sugars, and their relevance in industrial applications. Then carbohydrate compounds such as the polyols, uronic compounds, carbohydrate esters, and then some questions and answers. So here is the definition of carbohydrate. So the major portion of fruit and vegetable and cereals and their products contain carbohydrate on dry basis. So here starch from fruits, vegetables and cereals, glucose comes from fruits, fructose from fruits, then lactose from milk, then dietary fiber from fruit and vegetable and cereals. So all of these compounds are carbohydrates such as starch, glucose, fructose, lactose and dietary fiber. We will look at these one by one. So we will classify them into three categories. Here are these. First is the monosaccharide, second is oligosaccharide and third is polysaccharides. तो monosaccharides क्या होते हैं? These are majorly composed of D-glucose and D-fructose. And then comes to the oligosaccharide. Oligosaccharide means more than one. More than one monosaccharide अगर किसी भी compound में है, then they will be considered as either oligosaccharide or polysaccharide. If the number of monosaccharides units are in between 2 to 20, then they will be considered as oligosaccharide. And if there are more than 20 monomer units,
then they will be considered as polysaccharides. Mostly disaccharides and trisaccharides are found in nature, such as lactose, sucrose, maltose, lactose from milk, सुक्रोज फ्रॉम शुगर केन एंड माल्टोज बियर प्रोडक्शन के दौरान भी प्रोड्यूस होता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इसकी की जाती है फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब पॉलीसैकराइड्स को ग्लाइकन्स भी बोला जाता है। इफ देयर आर मोर देन 20 मोनोसैकराइड यूनिट्स देन दे विल बी कंसिडर्ड एज पॉलीसैकराइड्स। और पॉलीसैकराइड्स में कितने ही नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब यदि हम सेलुलोज की बात करें तो वहाँ पर 7000 से 15000 तक की मोनोमर यूनिट हो सकती हैं और एमाइलोपेक्टिन में ग्रेटर देन 60,000 मोनोमर यूनिट्स। सेलुलोज जो है डी ग्लूकोज मोनोसैकराइड से मिलकर बना होता है। सिमिलरली एमाइलोपेक्टिन भी डी ग्लूकोज से बना होता है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस एंड डिफरेंट स्टार्चेज में हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोनोमर यूनिट्स एंड देयर अरेंजमेंट। सो वी विल लुक एट दीज वन बाय वन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो कार्बोहाइड्रेट्स को और अच्छे से समझने के लिए हम पहले देखेंगे इनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो दो तरीके से स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है। वन इज़ द फिशर मेथड एंड सेकंड इज़ द हावर्थ प्रोजेक्शन। फिशर मेथड में डी एंड एल फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे, देन हावर्थ प्रोजेक्शन में अल्फा और बीटा फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड हेयर आर दीज टू। वन इज़ द फिशर मेथड जिसको हम ओपन रिंग फॉर्म भी बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन जिसको हम रिंग फॉर्म बोलते हैं, यानी इसमें क्लोज्ड रिंग रहेगा हावर्थ में और फिशर में ओपन रिंग रहेगा। और फिशर में दो तरह के हम कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकराइड्स को पढ़ते हैं, वन इज़ द एल्डोसिस एंड सेकंड इज़ द कीटोसिस। ये नामकरण सिर्फ इसीलिए किया जाता है बिकॉज एल्डोसिस का मतलब एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द एल्डोसिस एंड कीटोसिस में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Similarly, in the case of Haworth projection, it is further categorized into two. One is the pyranose and second is the furanose. Pyranose means 5 carbon structured ring. यानी यहाँ पर 5 कार्बन रहेंगे। C1 is the carbon 1, similarly carbon 2, then carbon 3, carbon 4 and carbon 5. Only these carbons participate in the ring formation. So here in the furanose 4, F यानी furanose, F means 4. यहाँ पर 4 कार्बन्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डोसिस को। क्योंकि एल्डोसिस में एल्डिहाइड रहेगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हमेशा चेन के एंड में रहता है, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट हम एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्राथमिकता देते हुए इसको कार्बन 1 कंसिडर करते हैं, देन कार्बन 2, देन कार्बन 3, देन कार्बन 4, देन कार्बन 5 एंड देन कार्बन 6। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें 6 कार्बन रहते हैं और ये जो कार्बन नंबर 5 है ये डिसाइड करता है कि ये डी ग्लूकोज होगा या फिर एल ग्लूकोज होगा। यदि यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में है तब इसको डी ग्लूकोज बोला जाएगा, अदरवाइज इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड इट विल बी कंसिडर्ड एज एल ग्लूकोज। सिमिलरली हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, यानी 6 कार्बन हो गए यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी इसको क्योंकि OH राइट साइड में है इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी बोलकर काम चल सकता है, बट फर्दर किसी भी केमिकल कंपाउंड को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए ज़रूरी है कि उसका नाम अच्छे से लिखा जाए। तो यहाँ पर OH क्योंकि राइट साइड में है इसलिए हम इसको बोलेंगे डी फ्रक्टोज। नाउ कम टू द हावर्थ प्रोजेक्शन। हमने देखा यहाँ पर कि पायरानोज और फ्यूरानोज दो तरह की टर्म्स होती हैं। पायरानोज में 5 कार्बन मिलकर और एक ऑक्सीजन के साथ एक रिंग बनाते हैं। सिमिलरली फ्यूरानोज में 4 कार्बन मिलकर एक ऑक्सीजन के साथ रिंग बनाते हैं। ये वाला ग्लूकोज एल्डोसिस और पायरानोज ये दोनों सेम चीज़ें होती है, बट नेचर में पायरानोज फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करती है, ना कि ओपन रिंग स्ट्रक्चर में। हम ज़्यादा इसको और गहराई में अभी नहीं समझेंगे कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से किस तरीके से ये रिंग स्ट्रक्चर बना, बट दोनों का केमिकल फॉर्मूला और प्रॉपर्टी सेम है और हम ग्लूकोज को रिंग फॉर्म में ही दर्शाएंगे आगे। और क्योंकि यहाँ पर C1 कार्बन के नीचे ग्रुप जो है OH ये नीचे की तरफ है तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फ़ा, यानी डी ग्लूकोज तो ये है ही, डी फ्रक्टोज ये भी है। अब अल्फ़ा और बीटा हम पढ़ते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन में, तो यहाँ पर यदि OH ग्रुप इस C1 में यदि प्लेन के नीचे है तब अल्फ़ा
and if it is above then beta, alpha below and beta above। स्ट्रक्चर्स के ऊपर जनरली गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, बट कुछ एक बार क्वेश्चंस आए हैं वो अभी हम देख लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ एक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज जो है नेचर में अल्फा और बीटा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोनोसैकेराइड्स रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और यदि हम स्पेसिफिक ग्लूकोज की बात करें डी ग्लूकोज की, तो वो नेचर में अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अल्फा फॉर्म में OH ग्रुप बिलो द प्लेन रहेगा और बीटा डी ग्लूकोज में OH ग्रुप अबव द प्लेन रहेगा, और इनको हम हेमी एसिटल्स बोलते हैं। हेमी एसिटल्स क्या होते हैं? रिंग फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स सच एज द अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज एज वेल, यानी इनको हम हेमी एसिटल्स बोलते हैं। और ये जो हेमी एसिटल्स हैं यदि अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएं तब ये एसिटल्स बन जाते हैं, और जिनको ग्लाइकोसाइड्स बोला जाता है। तो एक ग्लाइकोसाइड ये टर्म याद रखनी है हमें। देन एग्जाम्पल इज डी ग्लूकोज और मेथनॉल क्या बन जाता है? मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। अब अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज भी बोला जाता है, बिकॉज पायरानोज से पता लगता है कि ये 5 कार्बन एटम्स का एक रिंग बना हुआ है। सो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। और जब मेथनॉल आ जाएगा, OH को यहाँ पर रिप्लेस करके यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, तब मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड बन जाएगा, और सिमिलरली मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपायरानोसाइड बन जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म सच एज एनोमर्स, आइसोमर्स एंड इन्वर्जन। इन सभी तीनों टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के हिसाब से भी। सो फर्स्ट लेट्स सी एनोमर्स। एनोमर्स में हम एग्जांपल लेते हैं डी ग्लूकोपायरानोज, जिसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज में OH जो है C1 कार्बन में बिलो द प्लेन रहेगा, और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में अबव द प्लेन रहेगा। So anomers only differs in the C1 group presentation. So here the alpha D glucopyranose OH is below the plane, and here the OH is above the plane in the beta D glucopyranose. So concentration of anomeric form of D glucose at equilibrium. Equilibrium में जो ग्लूकोज है वो 2 फॉर्म्स में क्योंकि एग्जिस्ट करता है, at certain thermodynamic conditions this ratio may differ. अल्फा डी ग्लूकोज जो है 36.2% है और बीटा डी ग्लूकोज 63.8% है। यानी आपके पास अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन रखा हुआ है तो चांसेस ये रहेंगे एट द सर्टेन रूम टेम्परेचर अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज उसमें 36.2% रहेगा और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज 63.8% रहेगा। बट जैसे टेम्परेचर और बाकी कंडीशंस चेंज होंगी ये रेशो भी चेंज होगा। तो ये जो म्यूचुअल कन्वर्जन होती है हम इस चीज़ को बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। तो ये म्यूटर रोटेशन एक टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए एग्जाम्स के लिए इस टर्म को याद रखना ज़रूरी है। नाउ वी विल लुक एट द सेकेंड टर्म दैट इज़ द आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। सो ग्लूकोज आइसोमरेज कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज रिवर्सिबली। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला सेम है बट दे डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। So both glucose and fructose have same chemical formula, and the glucose isomerase, that is the enzyme which converts glucose into fructose and fructose into glucose as well. Now we will look at the third important term, that is the inversion. So inversion का मतलब ये है कि जैसे हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा वो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है दोनों की अलग अलग है। डी मीन्स जो पोलराइज्ड लाइट है उसको वो राइट साइड में मूव कर देता है, और एल ग्लूकोज पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में मूव करता है। और इन्वर्जन का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है इन्वर्ट सिरप। इन्वर्ट सिरप इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। इट इज़ मेड ऑफ सुक्रोज। जैसे आप मार्केट में अक्सर देखो कुछ भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट कोई है या कोई लिक्विड प्रोडक्ट है, बेवरेज प्रोडक्ट है, मोस्टली इन्वर्ट सिरप को यूज़ ज़्यादातर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनल प्रॉपर्टीज सच एज इट इज़ स्वीटर देन सुक्रोज।
So little quantity gives similar sweet profile. And second is the different shades imparts different color to food products. ये ट्रांसपेरेंट कलर से लेकर काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर में भी एग्जिस्ट करता है। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि ये क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता जो कि सुक्रोज में अक्सर होता है, तो इसलिए इन्वर्ट सिरप को जनरली कोई भी बेवरेज प्रोडक्ट को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ एक लोग इसको अडल्ट्रेंट के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं इन द हनी एंड मैपल सिरप। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली लेबल्ड एज शुगर सिरप, शुगर्स, इन्वर्ट सिरप और गोल्डन सिरप। जैसे कि हम यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स के एग्जांपल देख सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल बिस्किट प्रोडक्ट है एक, जिसमें इन्वर्ट शुगर सिरप को यूज़ किया गया है जहाँ पर शुगर और सिट्रिक एसिड मेंशन्ड है। और सिमिलरली मार्केट में दूसरा अवेलेबल प्रोडक्ट जहाँ पर शुगर सिरप लिखा हुआ है और क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है शुगर वाटर एसिडिटी रेगुलेटर। इन द अपकमिंग वीडियोज़ वी विल ऑल्सो लुक एट हाउ टू मेक इन्वर्ट सिरप। तो अभी हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा। सबसे पहले एनोमर्स को, देन आइसोमर्स को एंड देन इन्वर्जन को, और इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी समझा। और अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कुछ एक क्वेश्चंस। जैसे कि ये क्वेश्चन 2016 में गेट एग्जाम में आया था, 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन ये है कि मैच द एंजाइम्स इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। जितना अभी तक हमने पढ़ा उस बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कॉलम 1 में एंजाइम्स हैं और कॉलम 2 में उनके द्वारा किए गए फंक्शंस। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। हमारी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर हम देखते हैं कि एमाइलेज का क्या फंक्शन हो सकता है। कुछ एक ऑप्शंस मैच करना मुश्किल है। फॉस्फेटेज शायद आपने ना भी पढ़ा हो। प्रोटीएज से समझ में आता है ये प्रोटीन को कुछ तो भी ब्रेक डाउन करता होगा, मगर यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड दिया नहीं गया है ब्रेक डाउन वगैरह। मगर इन्वर्टेज हमने क्योंकि इन्वर्ट सिरप अभी पढ़ा है, क्योंकि इन्वर्टेज का काम क्या होता है, इन्वर्ट सिरप कैसे बनता है, सुक्रोज से बनता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इन्वर्टेज यानी क्यू का 1 होना चाहिए इसमें ऑप्शन। तो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर है बी, दैट इज़ अमाइलेज जो है कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। सीधी सी बात है, क्योंकि स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि स्टार्च जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में 7000 से 15000 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स हो सकती हैं, और जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो वो माल्टोज यूनिट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, बिकॉज माल्टोज जो है ओलिगोसैकेराइड है। देन क्यू का 1 दैट इज़ द इन्वर्टेज। इन्वर्ट सिरप से आप लिंक कर सकते हैं और पता लगता है इससे हमें कि कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देन द फोस्फेटेज इफेक्टिवनेस ऑफ पास्चराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह का क्वेश्चन एक अलग से भी आया है पेपर में, गेट एग्जाम में ही, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे। देन प्रोटीएज सॉफ्टनिंग ऑफ डो, क्योंकि डो में क्या होता है, ग्लूटन डेवलप किया जाता है, और ग्लूटन डेवलप होने का मतलब ये है कि प्रोटीन नेटवर्क डेवलप होना। तो किसी भी फूड एप्लीकेशन के लिए डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोटीन नेटवर्क को कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो डो अगर अपने को सॉफ्ट करना है तो ज़रूरी है कि उस प्रोटीन नेटवर्क को तोड़ना है। तो ये काम कौन कर सकता है, प्रोटीएज एंजाइम करता है। तो प्रोटीएज एंजाइम यानी एस का 2 होगा। इट मीन्स अगर आपको एस का भी यानी प्रोटीएज का ही पता होता तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस का एक ही सिंगल ऑप्शन दिया गया है 2, और सभी में अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में भी। अब क्योंकि आप दर्शिल सफारी की तरह पढ़ते पढ़ते शायद थोड़े बोर भी हो गए होंगे, और दर्शिल सफारी जैसे बोलता है कि आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, अब मैं और अध्ययन नहीं करना चाहता। मगर बेटा करना पड़ेगा, क्यों, कुछ एक क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में। तो इन सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि इनके कंसेप्ट को भी समझा जाए। जैसे कि कुछ एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं सच एज पोलियोल्स, यूरोनिक एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट एस्टर्स। इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, और फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में आए हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलियोल्स के बारे में। सो पोलियोल्स आर बेसिकली द हाइड्रोजनाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एनी मोनोसैकेराइड। हाइड्रोजनेशन जो होता है किसी भी डबल बॉन्ड के ऊपर होता है। सो देयर आर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एनी मोनोसैकेराइड in the aldehyde group and the ketonic group,
एल्डिहाइड ग्रुप में जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है, और सिमिलरली केटोनिक ग्रुप में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। तो जब हम इस डबल बॉन्ड को हटाकर वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तब उस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजनेशन कैन ऑलवेज बी कैरिड आउट इन अ ओपन स्ट्रक्चर, क्योंकि रिंग फॉर्म में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि रिंग फॉर्म में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ओपन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पोलियोल्स, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी है पोलियोल्स की। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पोलियोल्स सच एज द डी-ग्लूसिटोल which is commonly known as sorbitol. It is manufactured from the D-glucose. आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किया जा सकता है सोर्बिटोल को, और ये कुछ नेचर में भी एग्जिस्ट करता है, बट इन द माइनर अमाउंट. इट इज़ यूज्ड एज अ ह्यूमेक्टेंट सच एज इन द केक दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. दिस सोर्बिटोल इज यूज्ड एज अ ह्यूमेक्टेंट. ह्यूमेक्टेंट का मतलब ये है कि इसको यूज़ करने से उस प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, फ्रेशनेस बनी रहती है, तभी ये जो प्रोडक्ट है फ्रूट केक ये काफ़ी समय तक एकदम फ्रेश दिखेगा आपको। इसी तरीके से दूसरे भी कुछ एक पोलियोल्स हैं जैसे कि डी मैनिटोल एंड डी जाइलिटोल. ये दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं शुगर फ्री च्युइंगम में, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं. डी मैनिटोल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ह्यूमेक्टेंट एंड इट इज़ 65% sweeter as of sucrose, and D-xylitol is used in mint candies because it provides cooling sensation in mouth. It is non-carcinogenic as well. So here you can see in the example that the sorbitol and mannitol is used as a bulking agent because it is 65% sweeter that of the sucrose, and xylitol is non-carcinogenic. So now we will look at the second carbohydrate compound, that is the carbohydrate esters. So now we will look at the second carbohydrate compounds, that is the carbohydrate esters. So we know that carbohydrate contains many alcoholic groups. So when these alcoholic group reacts with any acid, organic or inorganic, it forms esters. So scientists found that these compound possesses better functional properties than any edible fat in terms of processing stability, calorific value and shelf life. So we will cover these topic in detail in the later part of fats. But there is a question in GATE in past year on this topic, so we will cover that in this video. So before this, we will look at that how these compounds are used in any food product. So there are three categories. One is the energy-free fat substitutes, such as the Olestra 7. This was produced by P&G. And second is the heat-stable fat, that is the malonate esters. It was developed by Frito-Lay. And third is the structural lipids. Caprenin 7 and Selekin 7 are used in confectionery and bakery in USA. So now the third carbohydrate compound, that is the uronic acids. So uronic acids are formed when the sixth carbon atom of any monosaccharide is replaced with carboxylic acid group. So here is the galactose. When its alcoholic group is replaced with COH group, it forms galactouronic acid, and it is a monomer unit of pectin. So when these monomer units combines, it forms pectin. So till now we have covered many things about the carbohydrates, its classifications, some terminologies such as anomers, isomers and inversion, and some carbohydrate compounds such as this polyol, carbohydrate esters and uronic acids. Now we will look at some of the questions that are appeared in the GATE examination. So here is the first question. Which of the following is false for polyols? As we have already covered polyols, we know that polyols are the hydrogenized product of any monosaccharide. So these four options are given. You have to choose false one. So I will give you 10 seconds to choose the correct answer. So I hope you have chose the correct answer. Now we will look at the options one by one. So first option is structure always exists in open form. That is correct. We have covered this point. Second option is may present naturally in plants. We will look at this point later. And third is forms after hydrogenation of monosaccharides. That is also correct. The fourth is all polyols are cariogenic. Cariogenic means which can cause damage to your teeth. So that is wrong. So it means the option is D. This question was of 2 marks.
because you have to look at all the options. Now the second question is based on assertion reasoning. So here the assertion is sorbitol is not a derivative product of carbohydrate. Okay. Now the reason is sorbitol is derived from ascorbic acid, which is commonly known as vitamin C. So you have to choose from the following options. So here I will give you 10 seconds to choose the correct answer. I hope you have chose the correct answer. So now look at the question again. Assertion here is sorbitol is not a derivative product of carbohydrate. This is false, right? Sorbitol is a derivative product of carbohydrate. We know that because it is a polyol, and polyol is a derivative product of carbohydrate. And the reason is sorbitol is derived from ascorbic acid. No, sorbitol is derived from D-glucose, as we have already seen. So again, the reason is also incorrect. So both the statements are incorrect. So here the answer will be A. That is, both A and R are false. Now the next question is, so the first question here was appeared in GATE 2016 was of 2 marks. Here the assertion is Polestra is used as a zero calorie fat replacer. Okay. Now the reason is it is a sucrose polyester with 6 to 8 acyl group and is not absorbed in the human digestive system. Okay. So here the 4 options are given. So you have to choose the correct answer. So I will give you 10 seconds to choose the correct answer. So I hope you have chose the correct answer. Now we will look at the assertion again. That is, Polestra is used as a zero calorie fat replacer. We know that it is a fat replacer. Okay. And it is sucrose polyester. We have also looked at this point. So here both the statements are correct. So which of the option says this? A and R are true. Okay. And R is not the correct reason and R is the correct reason for A. So which of the following B or D is correct? It is a sucrose polyester with 6 to 8 acyl group and is not absorbed in the human digestive system. क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता इसीलिए ये जीरो कैलोरी है, जीरो कैलोरी फैट रिप्लेसर है. यानी स्टेटमेंट सही है. It means reason is a correct statement and it defines assertion. So both A and R are true and R is the correct reason for A. It means D is the correct answer. Now look at the next question. Match the carbohydrate in column 1 with corresponding enzyme used for its hydrolysis in column 2. So here in the column 1 you are given some carbohydrates and in the column 2 you are given some enzymes. So you have to match column 1 with column 2 which corresponds to some enzymes used for their hydrolysis. Okay, I will give you 10 seconds to choose the correct answer. Remember, I have already covered lactouronic acid, which is a monomer unit of pectin. So on this basis, you can mark the correct answer. I hope you have chose the correct answer. Now look at the options. Here we have covered the pectin. Pectin's monomer unit is the lactouronic acid. So here the xylanase, beta-galactosidase, polygalactouronase, and the beta-fructofurantosidase. So it means among these 4 options, only this enzyme gives some similarity to the name of the monosaccharide that is used in the pectin. So that is P का तो 3 हो गया. So इन सभी ऑप्शंस में से यदि हम देखें तो हमें दिख रहा है कि P का सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर P को 3 के साथ मैच किया गया है. So on this basis we can choose the correct answer. So here the correct answer is A. Now look at the other carbohydrate and enzyme linkages. So here the lactose is connected with beta galactosidase. Lactose जो है lactose 2 मोनोमर यूनिट से बना होता है. One is the glucose and second is the galactose. So beta galactosidase जो है वो इस लिंकेज को तोड़ सकता है. And third is the hemicellulose.
हेमिसेलुलोज मैच करता है ज़ैलिनेज से। हेमिसेलुलोज में मोनोमर यूनिट्स होती हैं ग्लूकोज की। तो ज़ैलिनेज इज द एंजाइम व्हिच कैन ब्रेक द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन हेमिसेलुलोज। एंड नेक्स्ट इज द इन्यूलिन। इन्यूलिन की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वहां पर है बीटा फ्रक्टोफुरानोसाइडेज। तो इन क्वेश्चंस को देखकर हमें पता लग रहा है कि कुछ एक क्वेश्चंस जैसे कि ओलेस्ट्रा के ऊपर था, ये डायरेक्टली सिलेबस से नहीं लिया गया है, इवन इट इज पिक्ड फ्रॉम सम अदर सोर्स। ये ओलेस्ट्रा के ऊपर जो क्वेश्चन है ये किसी भी जनरल बुक में आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। एंड द नेक्स्ट इज द ये जो क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम के ऊपर था, इसमें सिर्फ आपको यदि एक भी ऑप्शन पता हो तो आप बाकी ऑप्शंस को ना जानते हुए भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को, और इस क्वेश्चन में यदि आपको सिर्फ एक ऑप्शन भी पता हो, यदि पैक्टिन का हमें पता लगा कि पॉलीलैक्टोयूरोलेज हो सकता है सिर्फ इस बेसिस पे, बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि लैक्टोयूरोनिक एसिड जो है पैक्टिन की मोनोमरिक यूनिट है। सो ओनली ऑन दिस बेसिक इंफॉर्मेशन वी मार्क दिस ऑप्शन। और हमें देखा कि बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, जैसे लैक्टोज का जो है वो आता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो थोड़ी बहुत जानकारी के ऊपर भी हम क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं कुछ एक इस तरह के क्वेश्चंस में। सो नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। On wet basis, a food contains 50% glucose, 20% protein, 10% fat, and 20% water content. What is the percentage of glucose in the food on dry basis? So this concept has already been covered in the initial slides of this video in the definition of carbohydrates. We have covered that carbohydrate is the major portion of fruit, vegetable and cereal products on the dry basis. So here the wet basis composition is given and we have to determine the percentage of glucose in the food on the dry basis. So I will give you 10 seconds to attempt this question. I hope you have marked the answer correct. So the answer is 62.5%. How? Let's look at the solution. So you want to determine the percentage of glucose in the food on dry basis. So on the dry basis, x1 is the glucose percentage. So that is the 50% glucose. So above is the 50, then below is the other compounds except water content. So here on the dry basis, 50 divided by 50% of glucose, 20% of protein and 10% of fat, that is 50 by 80 into 100, that comes out to be 62.5%. So here you got to know how to find the percentage of any compound on wet basis and dry basis. So what we have learned in this video about the carbohydrates, its classification and structural representation of monosaccharides, carbohydrate compounds such as the polyols, uronic acids and carbohydrate esters, then terms such as the anomers, isomers and inversion of sugars. So here in this picture you can see that the different shades of invert syrup. Here is the transparent one and the last one is the darker one. And we have also covered some question answers which makes relevance to some of the food exams such as the GATE exam or the NET exam and the other entrance exams as well. So please note, for any query please do comment in video comment section. You can contact me at Telegram @foodtechno, that is my channel at Telegram, and you can also contact me on YouTube Food Techno. So see you in next video.